Hello friend, today we will see regenerative air cooling system and reduced ambient air system. Until now we have finished simple air cooling system, simple air cooling evaporative system, bootstrap air cooling system and bootstrap evaporative air cooling system. Now only two air cooling systems are there which is to be studied, that is regenerative air cooling system and reduced ambient air system. Okay, so first of all, we will see regenerative air cooling system. So what happened here? The only difference is that whatever air goes to for the refrigerant purpose, some of the air is taken outside for cooling purpose. Okay, how we will see it? So what happened here? Ambient air comes inside the aircraft due to ramming action. Pressure and temperature of air increases. So this ram air goes to the main compressor where it is compressed. So temperature and pressure of this ram air increases. Now some of the part of this compressed air is taken out for refrigeration purpose and remaining is going for power generation. Okay. Now this part which is extracted for cooling purposes goes to the first heat exchanger where ram air is used because all of the ram air is not sent to the compressor. Some of the ram air is also extracted here. So this ram air takes it from this compressed air and cool this compressed air, and this hot ram air then goes to the uh, outside and drive the cooling fan through the cooling fan. Sorry. Okay. So this cooled compressed air is then enter into second heat exchanger. Now in second heat exchanger, uh, ultimately cool air which is sent to the refrigeration purpose is taken out. So some part of that air is taken out, and that part of the air takes heat from this compressed air, and further it cools this compressed air. Now this cooled compressed air goes to the cooling turbine where it expands. Due to expansion, its pressure and temperature decreases. Now this decreased or low pressure cool air then sent to the cabin for cooling purpose. Understood? This cooling turbine run this cooling fan, so no extra energy is required to drive this cooling fan. क्लियर? या यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी कूल एयर हम केबिन को कूलिंग के लिए भेजने वाले थे उसमें से कुछ पार्ट हमने निकाल लिया जो इस एयर कंप्रेस्ड एयर को कूल करेगा. दैट इज व्हाई नेम ऑफ दिस साइकिल इज रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम. ओके, यहाँ पर ज्यादा कूलिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब जैसे रॉकेट में या हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में इसका एप्लीकेशन है regenerative air cooling system का. ओके, ये दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन इन सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम. सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है किया है. वो मॉडिफिकेशन क्या है, कुछ कूल एयर यहाँ पर कूलिंग पर्पज के लिए निकाल दिए. ओके, इसका टीएस डायग्राम हम देखेंगे अभी. 1 to 2 रैमिंग, आइसेंट्रोपिक रैमिंग. अगर आइसेंट्रोपिक नहीं है तो 1 to 2 डैश एक्चुअल रैमिंग, 2 to 3 डैश एक्चुअल कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर, 3 डैश to 4 cooling in first heat exchanger, 4 to 5 cooling in second heat exchanger by using that regenerative air, and 5 to 6 dash expansion in cooling turbine, and 6 dash to 7 is nothing but refrigerating effect. Okay, समझ में आ गया? refrigerating effect निकालने से तो सेम है, mcp t6 dash minus t7 minus t6 dash, और कितना पावर हम ले रहे हैं? mcp t3 dash minus t2 dash. तो इसका COP क्या होगा? ये डिवाइडेड बाय ये, जो हमने बहुत पहले बहुत ऊपर के चारों साइकिल में देखा है, सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रिजेनरेटिव मतलब कुछ एयर जो केबिन में जाने वाली कूलिंग के लिए उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया, उसको ये कूल कर कंप्रेसर कूल करने के लिए यूज किया. दैट इज व्हाट इज रिजेनरेटिव कूलिंग सिस्टम, और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? रॉकेट में. Okay, next cycle is reduced ambient air cooling system. So in reduced ambient air cooling system, there are 2 turbines are used. Okay, and this turbine runs cooling fan. So no extra energy is required. बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर और 2 टर्बाइन है. ये भी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का मॉडिफिकेशन है. अब इसमें क्या होता है देखेंगे. एम्बिएंट एयर रैमिंग एक्शन के अंदर आ गई, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया, रैम एयर मेन कंप्रेसर को भेजी, लेकिन कुछ हमने निकाल लिया पर रैम एयर कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गया.
उसमें से कुछ पार्ट हम रेफ्रिजरेशन के लिए या कूलिंग के लिए लेने वाले, बाकी का पावर जनरेशन के लिए आगे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ये जो कंप्रेस्ड एयर है वो पहले हीट एक्सचेंजर में गए, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट रैम एयर से उसको कूल नहीं कर रहे। रैम एयर पहले कूलिंग टरबाइन पे एक्सपांड होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर और प्रेशर एम्बिएंट एयर से ज्यादा है, ठीक है। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वो कूल होंगी और उसके बाद वो हीट होगी। अब ये क्यों कम किया, जैसे कि अब हम देखेंगे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है या रॉकेट है, उसमें क्या होता है, जो रैम एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एम्बिएंट एयर से रैम एयर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो उसे पहले कूल करने के लिए यहाँ पर कूलिंग टरबाइन है। क्लियर, जो मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा कूलिंग इफेक्ट, अगर हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर भेजते तो वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। ओके, उसके लिए हमने क्या किया, उसको पहले कूलिंग टरबाइन पे एक्सपांड किया, उसका टेम्परेचर कम हुआ, बाद में हम उसको कूलिंग के लिए यूज करने वाले हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि सुपरसोनिक या हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में रैमिंग की वजह से टेम्परेचर एयर का बढ़ जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर यूज होगा, ऑब्वियसली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में। अब देखो कूलिंग टरबाइन पे एक्सपांड करने के बाद रैम एयर कूल हो जाएंगी, इस कंप्रेस्ड एयर की हीट ले लेगी और बाहर चले जाएंगे। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर कूल हुई है अभी, उसे सेकंड का कूलिंग टरबाइन में जाएगी, वहां पर वो एक्सपांड होगी, एक्सपांड होने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम होगा और वो कूल एयर, लो प्रेशर कूल एयर कूलिंग पर्पज के लिए चले जाएंगे। अब ये जो कूलिंग सेकंड कूलिंग टरबाइन और फर्स्ट कूलिंग टरबाइन एक साथ कनेक्टेड रिडक्शन गियर के थ्रू जो इस कूलिंग फैन को ड्राइव करते हैं। समझ में आ गया, पहले रैम एयर को कूल किया, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट का स्पीड ज्यादा रहता है तो रैम एयर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जनरली ये कहाँ पर यूज होता है, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में, जो रिजनरेटिव वो भी हाई स्पीड में यूज होता है। अब इसका टीएस डायग्राम देखेंगे, 1 to 2 आइडियल रैमिंग और 1 to 2 एक्चुअल रैमिंग, 2 से 3 एक्चुअल कंप्रेशन इन मेन कंप्रेसर, 3 to 4 cooling in heat exchanger, 4 to 5 expansion in cooling turbine, 5 से 6 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम निकालना तो कैसे निकालेंगे, एमसीपी T6 माइनस T5 कितना पावर लगेगी, कैसे निकालेंगे, एमसीपी T3 माइनस T2। समझ में आ गया, और इसका सीओपी ये डिवाइडेड बाय ये। क्लियर, सो we have finished all the एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कौन से हमें देखेंगे, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम जो हमने देखा, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम, इसमें एक हीट एक्सचेंजर ज्यादा रहता है और वाटर या कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज करके उसको कूल करते हैं। बूटस्ट्रैप को देखा, बूटस्ट्रैप इवेपोरेटर भी देखा, रेड्यूस्ड एम्बिएंट एयर अभी देखा, रीजनरेटिव। इस 6 में से एटलीस्ट 1 तो भी एग्जाम में आपको आएगा, तो आपको डिटेल उसका स्कीमेटिक डायग्राम निकाल के उसको एक्सप्लेन करना है, पीएस डायग्राम निकाल के हर प्रोसेस में क्या होता है दिखाना है, और उसका सीओपी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये 6 में से एक एटलीस्ट 1 विल बी देयर इन एग्जाम फॉर 6 to 7 मार्क्स, जिसमें आपको स्कीमेटिक डायग्राम, पीएस डायग्राम, उसका वर्किंग और टीएस डायग्राम में हर प्रोसेस पे क्या होता है और उसका सीओपी हम कैसे निकाल सकते हैं आपको बताना। ये 7 या 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।